नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट के इस विशेष अंक में। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट पे हम बात करेंगे भारत इटली के लगातार सुदृढ़ होते संबंधों की और 5 देशों की जो प्रधानमंत्री की यात्रा है वो किन मायनों में विशेष रही है, क्या कुछ टेक अवेज रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और उसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो दौरा है साउथ कोरिया का, वो किन मायनों में महत्वपूर्ण है, इस विषय पर भी हम आपको जानकारी देंगे। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें भी हम आपसे रूबरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में हेडलाइंस। भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा। पीएम मोदी ने कहा, इटली की पीएम मेलोनी के नेतृत्व में संबंधों को मिली नई गति। द्विपक्षीय व्यापार को 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक ले जाने का लक्ष्य। पीएम मोदी की 5 देशों की ऐतिहासिक यात्रा से देश के हिस्से आए कई उपलब्धियां। यूएई से इटली तक कई समझौतों के जरिए विकास को मिली नई गति। ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, रक्षा सहयोग, हरित ऊर्जा, व्यापार के क्षेत्र में बढ़े सहयोग से नई शक्ति। दक्षिण कोरिया के सियोल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, दुनिया की कोई भी ताकत भारत को विकसित देश होने से नहीं रोक सकती। पश्चिम बंगाल में सीएए कानून लागू। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीएए के तहत योग्य लोगों को नहीं होगी समस्या। बांग्लादेश से भारत आए लोग बीएसएफ को सौंपे जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बीजेपी आक्रामक। विवादित बयानों को बताया नेता प्रतिपक्ष की हताशा का नतीजा। गिरते जनाधार और हार पर दी आत्ममंथन की सलाह। On Prime Minister's visit to Italy, we also have for this press briefing our ambassador to Italy, Srimati Vani Rao, and we are also assisted in this press briefing by Piyush Srivastav, who looks after Europe West Division in the Ministry of External Affairs. With that, let me hand over the floor to Secretary West. Sir. Thank you, Randir. Madam Vani Rao, Ambassador, Sri Piyush Srivastava, Additional Secretary, my colleagues, dear friends from the media. I will give an opening remarks and then we will be happy to take questions. Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has been on a visit to Italy for May 19 and 20 at the invitation of the Italian Prime Minister, Madam Meloni. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and 3rd overall. The Prime Minister is coming at a time when there is significant momentum in our bilateral relationships. Both Prime Ministers have already met 6 times since 2023. The Prime Minister arrived in Rome yesterday evening. He was received by Deputy Prime Minister, His Excellency, Mr. Tajani, at the airport. Prime Minister Meloni hosted dinner for Prime Minister Modi in the evening, during which both leaders had one-on-one meeting focusing on bilateral relations as well as key regional and global developments. Thereafter, the 2 leaders visited Colosseum, the famous archaeological site in Rome. On arrival at the hotel, Prime Minister was received by members of the Indian community, followed by cultural performances by a group of Italian artists. Today, Prime Minister began his engagements with a call on to the President of the Italian Republic, His Excellency Mr. Sergio Mattarella, at the palace. Both leaders exchanged views on the entire spectrum of our bilateral relations and on global and regional issues of mutual interest. Prime Minister invited President of the Italian Republic to visit India, which has been accepted. Prime Minister held delegation-level talks with Prime Minister Meloni. The 2 leaders welcomed the strong momentum in bilateral relations and agreed to deepen cooperation across a wide array of sectors,
including in trade and investment, defense and security, science and technology, research and innovation, space, energy, AI and critical technologies, education, culture, and people-to-people ties. The two leaders also discussed the pressing global challenges, including situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. In a demonstration of deep trust and strength that prevails in our bilateral partnership, the two leaders decided to elevate the India-Italy strategic partnership to the level of special strategic partnership. A number of key bilateral agreements and MOUs were exchanged in areas of defense, critical technologies, science and technology, research, connectivity, agriculture, traditional medicine, education, culture, and mobility. A comprehensive list of the agreements as well as the announcements has been shared, will be shared immediately after this media briefing. The same would also be available on MEA website. Subsequently, during the lunch hosted by Prime Minister Meloni, both leaders interacted with the select Indian and Italian industry leaders representing sectors such as automobiles, energy, infrastructure, shipping and logistics, IT, digital, aerospace and defense, agriculture and food supply chain. Prime Minister also visited the headquarters of the United Nations Food and Agriculture Organization. Prime Minister's visit to FAO is the first by an Indian head of government in the last 30 years. This visit has been substantive, truly reflecting the special strategic partnership between the two countries. I will now summarize the key outcomes of the visit. Trade and investment was an important focus. The bilateral trade and economic ties have got further boost by the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Both sides have now set a target of increasing bilateral trade to Euro 20 billion by 2029 and encourage the private sectors to forge partnerships and invest for building resilient supply chains. Both sides adopted defense industrial roadmap, which will pave the way for further defense industrial cooperation, technology partnership, design and co-production of defense equipment, particularly creating new opportunities in aerospace systems, naval platforms, and next-generation defense technologies. Both leaders strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. They welcomed the progress made on implementation of joint initiative to counter financing of terrorism adopted by both leaders in November 2025. Our bilateral cooperation in technology and innovation has also deepened. Signing of an MOU on cooperation in critical minerals and the decision to set up an innovation center in India were the key outcomes in this domain. Connectivity and cooperation in maritime transport and ports and logistics were also discussed. Both sides signed an MOU for cooperation in maritime transport and ports. The discussions are also progressing on setting up a virtual trade corridor. The leaders also agreed to working together for early implementation of IMEC. Significant initiatives were taken to strengthen culture, education, and people-to-people ties. To further strengthen cultural relations and promote two-way tourism, both leaders announced the celebration of 2027 as the Year of Culture between India and Italy. The MOU for Italy's cooperation on development of National Maritime Heritage Complex at Lothal, Gujarat, was also signed. Both sides are working on twinning program between UNESCO World Heritage Sites in our two countries. Prime Minister invited Italy to participate in WAVE Summit scheduled in India this year. The JDA on facilitation of mobility of nurses from India to Italy was among the key outcomes of the visits, which will facilitate smoother movement of Indian healthcare professionals to Italy.
Indo-Italian roadmap on higher education and research was also signed, besides agreements on science and technology and research cooperation. During his visit to FAO, the Prime Minister was conferred with the Agricola Award by Director General of FAO in recognition of his exceptional contribution through his leadership and efforts to address food security, sustainable agriculture, and rural development in India as well as at the global level. Prime Minister dedicated the award to our farmers, agriculture scientists of India, and those who are associated with farming, agriculture, and fisheries. We would be very happy now to take questions. Thank you. Thank you, sir. Before we open the floor for some questions, let me also give you a snapshot of Prime Minister's business engagements on all the 5 countries that he visited. It has been obviously a very successful visit to these 5 countries and a very impactful India-Nordic summit. Prime Minister, during his business engagements in the 5 countries, met over 50 CEOs of large global companies. A large number of these companies are already invested in India. They are present in India, and their cumulative investment and business exposure to India stands around $180 billion US. They are also making new investments in the country to take advantage of India's growth story. Several of their projects are in pipeline, including in the areas of semiconductors, logistics, green infrastructure, technology, and other such verticals. You already informed about the announcement that UAE made of fresh investments of US $5 billion in the Indian market. I would also like to inform you that the estimated fresh commitments by the companies that the Prime Minister met, global companies, global majors, their fresh commitments, their business expansion and business plans of these companies in India stands around US $40 billion. So that gives you a sense of how successfully the visits to these 5 countries in terms of strengthening our economic relations with all of them, as also adding value to the Indian growth story stands. With that, now I open the floor for some questions. Please. Hi sir, I'm Ravi from INS. I would like to ask on the 2 things. One is IMEC and another is defense sector, which you mentioned, Mr. Ambassador, sir. Do you have any roadmap and how these sectors are going to flourish in India? Hi sir, Akshay Dongre from DD News. Sir, my question is also about IMAC, but slightly different one. Amid the present geopolitical turmoil that we are witnessing, what is the roadmap ahead discussed by the 2 countries? Okay. Roadmap for what? IMEC. Again, IMEC related. So we can take these questions and we'll come back for more. Yeah. Before I start, let me also mention that Honorable Prime Minister has invited Prime Minister of Italy, Madam Meloni, to visit India at the earliest convenience. The visit has been accepted. We look forward to her early visit to India. Now, on the first question on IMEC, you know how important the project is. The 2 Prime Ministers reaffirmed their commitment to cooperate on the IMEC corridor project, recognizing the transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity, and prosperity. Appreciating the preliminary discussions around the project, they encouraged the first IMEC ministerial meeting to take concrete steps for advancing this initiative in 2026. So discussions are going on, work is in progress, and we will definitely keep you updated. Second, on the defense partnership, there is a growing interaction in defense sector with increased service-to-service exchanges,
and port calls by respective naval ships. Both sides signed the joint declaration of intent and an industrial roadmap for promotion of defense industrial cooperation and technology partnership, design and co-production of defense equipment. India's ongoing efforts to strengthen self-reliance in defense manufacturing will create new opportunities for collaboration with the Italian industry, particularly in aerospace systems, naval platforms, and next-generation defense technologies. Italy is also one of the key partners in India-EU Defense and Security Partnership that we signed in January this year. As you might be aware, that the Adani Defense and Aerospace Limited and Italy's Leonardo SPA has announced the partnership for procurement and indigenization of helicopters and MRO and pilot training. Indian Navy is securing Black Shark torpedoes from Pinsanteries WAS. Leonardo is discussing a proposal for a JV with BHEL for enhancing supply of super rapid gun mount and local production in India. These are some of the ongoing developments in our defense engagement. But the roadmap which was signed would pave the way for further closer collaboration and engagement between the defense sectors, including the private sector in our engagement. Thank you. Any further questions? Okay. If we do not have any further questions, then we thank you for your presence. This press briefing comes to an end. Thank you very much. Thank you. तो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस इटली रोम में आप वहां से सीधा प्रसारण देख रहे थे। सीबी जॉर्ज, सेक्रेटरी वेस्ट, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और साफ तौर पर बताया कि किस तरह से इटली और भारत के बीच में ये जो द्विपक्षीय संबंध है वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के साथ ही जो भारत के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, रणनीतिक संबंध थे जो इटली के साथ में, वो विशेष रणनीतिक संबंध के तौर पर स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक एनहांस कर दिए गए हैं। तो तमाम विषयों पर और तमाम क्षेत्रों में जो रणनीतिक साझेदारी भारत के साथ में थी उसको एक अगले स्टेप तक ले जाने की दृढ़ इच्छा दोनों देशों ने जताई है। इसके साथ ही साथ जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको हर तरह से एनहांस करने की भी बात आई है। उन्होंने कहा कि ये जो डिप्लोमेसी है भारत और इटली के बीच में, ये दरअसल एक साझा धरोहर के तौर पर दोनों देश इसको देख रहे हैं और इसको और आगे ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये भी बताया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस पूरे दौरे का खाका था, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच में जो द्विपक्षीय संवाद हुआ उसमें किन विषयों पर विशेष बातचीत की गई, इस बारे में भी जानकारी दी गई। और इसके साथ ही साथ जो एग्रीकोला अवार्ड जो FAO की तरफ से मिला हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये कितना प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इसके क्या मायने हैं, ये भी विशेष तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। और इसके साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई कि जो 5 देशों की यात्रा हुई है उसका कितना महत्व है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है, ये भी बताने की पूरी तरह से बताया गया। और साथ में ये भी बताया गया कि किस तरह से $40 बिलियन के निवेश की बात हुई है। जब यात्राओं की बात होती है तो बिजनेस की बात ज़रूर होती है और जब व्यापार और निवेश के इस विशेष संदर्भ में बात करें तो इन दोनों देशों के बीच में जब बिजनेस की बात हुई है, दरअसल 5 देशों की बात करें तो $40 बिलियन का करीब निवेश की बात इन देशों से हुई है। तो भारत अब केवल जो है एक बड़ा बाजार के तौर पर नहीं देखा जा रहा है बल्कि एक व्यावसायिक पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है और ये हर देश के साथ में ये बात सामने निकल कर आई है। और यहाँ से बढ़ेंगे अब अगली खबर की तरफ और बातचीत करेंगे, दिखाएंगे आपको कि इटली के साथ में जो भारत प्रधानमंत्री का जो दौरा है, ऑनगोइंग दौरा है, ये किन मायनों में महत्वपूर्ण है, क्या क्या कुछ खास हुआ, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इटली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा रहा है, किन मायनों में खास रहा है, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। और इटली के साथ भारत के संबंध विशेष रणनीतिक स्तर के होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद इसकी घोषणा की। दोनों देशों ने साल 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक ले जाने की प्रतिबद्धता भी जताई है। बुधवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मतारेला से मुलाकात की। उसके बाद ऐतिहासिक विला दोरिया पाम फिली परिसर में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मिलिट्री ऑनर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त बयान के दौरान कहा कि भारत इटली के संबंध साझा भविष्य पर आधारित हैं। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक स्तर पर ले जाने की घोषणा भी की। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। भारत इटली के बीच तकनीक और नवाचार को प्रधानमंत्री मोदी ने साझेदारी का इंजन बताया। उन्होंने कहा कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुरक्षित डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग पर सहयोग और भी प्रगाढ़ होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का नया अध्याय खुल रहा है। हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। This visit of yours is an honor for us and opens a new page in the relations with our countries. It's not going to be the last one in this long book that you are writing together with resolution, doing our work in the best possible. There is an Indian word which states that very well, which is parishram. Che parishram hi sa falta ki kunjie. Which means tough work is the key to success, and we are used to build our relations in this way, with a hard work which becomes success at the end. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त रूप से लिखे अपने लेख में बताया कि व्यापक होते द्विपक्षीय संबंधों में दोनों देशों की आर्थिक ताकत, सामाजिक रचनात्मकता और हजारों वर्षों पुराने सभ्यागत विरासत शामिल हैं।
वहीं भारत इटली ने 2029 तक सालाना द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। इटली में भारतीय कला, योग, आयुर्वेद और खानपान के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। संस्कृत और लैटिन जैसी प्राचीन भाषाएं एक ही भाषा परिवार से आती हैं। यह दर्शाता है कि हमारा रिश्ता केवल डिप्लोमेसी का नहीं, साझी धरोहर का है। इटली में प्रधानमंत्री ने मोरस निग्रा, जो कि शहतूत की प्रजाति का एक वृक्ष है, उसका पौधारोपण किया। भारत इटली के व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में साझेदारी और भी प्रगाढ़ हो रही है। रोम से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली यात्रा के दौरान खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय का भी दौरा किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल के एग्रीकोला मेडल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। FAO के गठन के साथ ही सम्मान की शुरुआत 1977 में हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए फूड सिक्योरिटी पॉलिसी मैटर नहीं करता, बल्कि ये मानवता के प्रति जिम्मेदारी है। उन्होंने भारत में कृषि को सिर्फ फसल उगाने का माध्यम नहीं बताया, बल्कि कहा कि ये मदर अर्थ से गहरे संबंध को दर्शाता है। इसलिए पुरस्कार देश के अन्नदाताओं को समर्पित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुरस्कार को देश के किसानों को, देश के अन्नदाताओं को समर्पित किया। यह केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं। तो प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में पर्यावरण और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक ढंग से नई तकनीक के जरिए खेती की जा रही है। ऐसे में भारत विश्व खाद्य सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। फ्यूचर ऑफ फार्मिंग केवल प्रोड्यूस मोर में नहीं, बल्कि प्रोड्यूस बेटर में है। इसी सोच के साथ बायोडायवर्सिटी बढ़ाने और केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंस कम करने पर बल दिया जा रहा है। भारत का अनुभव दुनिया को यह दिखा रहा है कि स्केल और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इंक्लूजन एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और साइंस ड्रिवन एग्रीकल्चर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का मजबूत आधार बन सकता है। वहीं DGFAO डॉक्टर चू डॉग्यू ने भारत की प्रशंसा की और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व की भूरी भूरी सराहना की। Prime Minister Modi has been a symbol of hope for India's rural masses. He envisioned a dawn of the self-reliance when the darkness of food insecurity still loomed over millions. Thank you, Your Excellencies, for leading India and, by example, the rest of the world towards a more food secure tomorrow. It is, therefore, my distinct honor and privilege to confer upon Your Excellency's FAO Agricultural Medal as a symbol that
fight against hunger is the most noble mission of war. Congratulations, Honorable Prime Minister. तो किन मायनों में महत्वपूर्ण रही है 5 देशों की प्रधानमंत्री की ये यात्रा, ये आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यूएई से अगर शुरुआत करें तो ऊर्जा से टेक्नोलॉजी तक भारत के लिए क्यों खास है यूएई। भारत की ऊर्जा ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी के क्षेत्रों से आता है। ये बात आप सब लोग इन दिनों में जान पाए होंगे जब हॉर्मुज स्ट्रेट की बात होती है। यूएई भारत का भरोसेमंद तेल और गैस साझेदार बनकर उभरा है और एक बड़ा हिस्सा भारत वहां से लेता है। अब रिश्ता केवल तेल खरीदने तक सीमित नहीं है बल्कि निवेश और हाई टेक तक पहुंच गया है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि अब सिर्फ तेल खरीदने तक सीमित नहीं रहा है। भारत की अगर हम करें कि इस दौरे की क्या उपलब्धियां रही है यूएई के विशेष संदर्भ में, तो फुजैरा में कच्चे तेल के भंडारण से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी। ये इस दौरे के दौरान जो निर्णय लिए गए हैं। एलपीजी और एलएनजी स्टोरेज सहयोग से, इसके जो सहयोग की पर एक एमओयू हुआ है, उसके सहयोग से भविष्य के ईंधन संकट से सुरक्षा मिल सकेगी। ये भी एक बेहद बड़ा कदम है। भारत और यूएई ने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रक्षा तकनीक में नया ढांचा बनाया है, तो एक नया सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ सुपर कंप्यूटिंग और एआई में सहयोग से भारत की डिजिटल क्षमता और बढ़ेगी, उसको और विस्तार मिलेगा। यूएई के अरबों डॉलर के निवेश से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। बहुत बड़ा निवेश करने की बात यूएई से इस दौरे में सामने आई है, तो उससे एक बड़ा बूस्ट इंडियन इकोनॉमी को मिलने वाला है। इसके साथ अगर हम नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड क्यों अहम है भारत के लिए। दुनिया की सबसे उन्नत चिप मशीन बनाने वाली कंपनी ASML यहीं की है, ये बात समझने की जरूरत है। और ASML के साथ में भारत ने समझौता किया है, भारत की कंपनी ने। दरअसल कृषि, जल प्रबंधन और हरित ऊर्जा में नीदरलैंड वैश्विक नेता माना जाता है इन क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट की बात हो या फिर ग्रीन एनर्जी की बात हो। जो नीदरलैंड की जो टेक्नोलॉजी है उसको दुनिया भर में सबसे श्रेष्ठ और सबसे उन्नत माना जाता है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, और अगर हम जब हम इस दौरे की उपलब्धियों की बात करते हैं तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML समझौता भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इससे जो भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग लीप्स एंड बाउंड्स आगे बढ़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप से भारत की हरित ऊर्जा महत्वाकांक्षा को एक बड़ी गति मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स सहयोग से चिप, बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर को भी जोरदार फायदा होने की उम्मीद है। इस पूरे इंडस्ट्री को एक तेज गति मिलने की बात कही जा रही है। जल प्रबंधन और बंदरगाह तकनीक में सहयोग भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा। तो ये जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं कि जो इस दौरे से जो टेक अवेज हैं उनमें ये एक विशेष बात है। कृषि, डेयरी और फूल उत्पादन में इंडो डच उत्कृष्टता केंद्र किसानों को एक नई तकनीक देगा। तो ये भी निश्चित तौर पर किसानों के लिए भी बड़ा विन विन सिचुएशन रहा है। अब हम बात करें अगर स्वीडन की, तो स्वीडन क्यों महत्वपूर्ण है। आप इन कंपनियों को देखिए, स्पॉटिफाई, एरिक्सन, वॉल्वो, आइकिया जैसी वैश्विक कंपनियों का ये देश है। और ये माना जा रहा है कि भाई ये इनमें बहुत अग्रणी है ये देश, और इनकी ढेरों कंपनियां भारत में पहले से मौजूद हैं। नवाचार और रिसर्च में दुनिया के अग्रणी देशों में स्वीडन शामिल किया जाता है, चाहे वो इनोवेशन का देश ही कहा जाता है। भारत स्वीडन इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 से नई टेक साझेदारी शुरू हुई। इस दौरे की जब हम बड़ी उपलब्धियों की बात करते हैं तो भारत स्वीडन इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 से नई टेक साझेदारी, एक नई टेक साझेदारी की शुरुआत हुई है भारत और स्वीडन के बीच में। एआई और टेक्नोलॉजी कॉरिडोर से भारत के डिजिटल मिशन को मजबूती मिलेगी। तो बराबर हम लगातार एआई और डिजिटल मिशन को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं देश दर देश, जहां पर प्रधानमंत्री ने यात्रा की है। स्वीडन की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप और एसएमई प्लेटफॉर्म से युवाओं और उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे। तब जब हम रोजगार सृजन की बात करते हैं तो उसका भी ख्याल रखा गया है। आईपीआर यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों पर संवाद से टेक निवेश और आसान बनेगा। यह भी एक बड़ा टेक अवे माना जा रहा है इस दौरे का। मेक इन इंडिया को यूरोपीय टेक और डिजाइन का समर्थन मिलेगा। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो यूरोपीय टेक और डिजाइन का समर्थन भारत के मेक इन इंडिया यानी भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है उसको मिल सकेगा। इसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं समुद्री अर्थव्यवस्था
और ग्रीन एनर्जी और आर्कटिक रिसर्च में नॉर्वे की बात करेंगे तो नॉर्वे एक अग्रणी देश है। हम नॉर्वे के साथ संबंधों की बात कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ भारत नॉर्वे संबंध अब ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंच गए हैं और पर्यावरण के संबंध में नॉर्वे एक अग्रणी देश है और भारत नॉर्वे संबंध अब ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बाद से। इस दौरे की अगर उपलब्धियों की बात करें तो समुद्री पवन ऊर्जा और ओशन एनर्जी में सहयोग को बढ़ावा दिया गया है, उसको लेकर के तमाम MOUs समझौते किए गए हैं। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच अंतरिक्ष सहयोग, क्योंकि आप ये जानते हैं कि नॉर्वे की जो स्पेस एजेंसी है वो भी बहुत उन्नत मानी जाती है, तो इसरो के साथ पे एक विशेष समझौते हुए हैं। डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप से टेक और डिजिटल इंफ्रा को मजबूती मिली है। तो इस दौरे की बात करें हम, टनल निर्माण और जियो टेक्निकल तकनीक से भारत के पहाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा मिलेगा। ये भी बात देखी गई है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की बात होगी तो उसमें भी ये बात सामने आएगी। और भारत नॉर्डिक समिट का एक बहुत बड़ा असर रहा है। जो भारत नॉर्डिक समिट 5 देश जो इस क्षेत्र के जो शामिल हुए थे नॉर्डिक देश, उनका भी एक असर रहा है। नॉर्डिक देशों ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन एक बार फिर से दोहराया है। भारत के जो मिशंस हैं उसको उस पर समर्थन की बात कही है और NSG में भी भारत के समर्थन की बात कही गई है। AI, ग्रीन टेक, स्पेस और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई है नॉर्वे के साथ में और दूसरे जो नॉर्डिक देश हैं उनके साथ में। इंडो पैसिफिक और समुद्री सुरक्षा में भारत की भूमिका को समर्थन दिया गया है। ग्रीन साझेदारी से समुद्री ताकत तक जब हम बढ़ने की बात करते हैं तो ये बात सामने आती है। IMEC, रक्षा और यूरोप कनेक्शन, भारत इटली रिश्तों का नया दौर। जब हम इटली के इस दौरे की बात कर रहे हैं, इटली यूरोप की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत है। जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो जब बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत के साथ कोलैबोरेशन किस तरह से आगे लेकर जाएगी ये भी समझने की ज़रूरत है। IMEC की बात बार बार हो रही है और इंडिया मिडिल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है कितना महत्वपूर्ण है, इटली का इसमें विशेष महत्व है और ये कॉरिडोर, इसमें इटली यूरोप का प्रवेश द्वार बन सकता है। इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। PM जॉर्जिया मेलोनी के दौर में भारत इटली रिश्तों में एक नई तेजी आई है। जिस तरह से हमने बताया कि अब से इससे पहले 6 बार 2023 से लेकर अब तक दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को अगर इस दौरे को मिला लिया जाए तो 7 बार मुलाकात हुई है और प्राइम मिनिस्टर मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौर में भारत इटली के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। भारत और इटली ने रिश्तों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय लिया है। जब हम उपलब्धियों की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाने की बात इस दौरे में हुई है। IMEC कॉरिडोर से भारत यूरोप व्यापार का नया मार्ग तैयार होगा। बड़ा गेम चेंजर साबित होगा ये IMEC। ये कई मायनों में एक गेम चेंजर होने जा रहा है और इसके साथ ही साथ AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग इटली के साथ और बढ़ाने पर सहमति हुई है। रक्षा उद्योगों के बीच को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर भी जोर दिया गया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इससे जुड़ी हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी उसमें भी हमने आपको बताया था कि उसमें दरअसल MEA की तरफ से बताया गया था कि कितना महत्वपूर्ण है ये। इसके साथ ही साथ हम इटली के साथ में अगर हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो शिपिंग, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में नई साझेदारियां सामने आई हैं। भारत और के साथ में अगर हम EU FTA को आगे बढ़ाने में इटली का बहुत बड़ा समर्थन जो है वो सामने आया है। दोनों देशों ने व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक ले जाने का लक्ष्य रखा है 2029 तक। तो इस जो व्यापार है उसको 20 बिलियन यूरो तक ले जाने की बात कही है। तो इस पूरे दौरे की अगर 5 देशों की बात करें तो इस पूरे दौरे की अगर हम उपलब्धियों को नटशेल में एक बार फिर से आपको बताएं तो ऊर्जा सुरक्षा की एक नई गारंटी मिली है। आपने देखा कि किस तरह से ऊर्जा के नए स्रोत डेवलप किए गए हैं। सेमीकंडक्टर और हाईटेक सहयोग ये मिला है। आपने देखा है कि किस तरह से टाटा के साथ में जो वहाँ की कंपनी है उस नॉर्वे की, उसने भारत के में ये सहयोग किया है। AI और डिजिटल इंफ्रा में साझेदारी को एक और नया आयाम मिला है। इसके साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर और उस सहयोग को और आगे ले जाने की बात हुई है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा में नई मजबूती मिली है। तो इसके साथ ही साथ यूरोप और नॉर्डिक देशों के साथ रणनीतिक तालमेल भी उभर कर सामने आया है। IMEC के जरिए नई वैश्विक आर्थिक कनेक्टिविटी बनने की भी बात सामने
आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इन 5 देशों का दौरा, इनके जो टेक अवेज है, जो उपलब्धियां हैं, भारत को अगर क्या हासिल हुआ जब हम इसकी बात करते हैं तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम भी हैं। इसके बहुत आर्थिक जो इसकी जो परिणाम है वो निश्चित तौर पर दूरगामी होंगे देश के लिए भी, और हम अगर कहें इन नॉर्डिक देशों के लिए भी विन विन सिचुएशन है तो गलत नहीं होगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इन 5 देशों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, इटली का दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण रहा है, इस पर चर्चा, इससे जुड़ी हुई खबरें हम आपको आगे भी दिखाएंगे। ब्रेक के लिए रुकेंगे। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार। लगता है मेरी बारी। हाँ हाँ, जा जा, देख ले देख ले। वापस आ गया? हाँ हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वैश्विक कूटनीति है, जो 5 देशों का दौरा है, इस पर हम विशेष बातचीत भी करेंगे। और यही आज हमारे विशेष चर्चा का विषय है, पीएम मोदी की वैश्विक कूटनीति। पीएम मोदी की वैश्विक कूटनीति, भारत के हितों की गारंटी, ये आज की विशेष चर्चा का विषय है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल वाधवा, जो कि फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू इटली रहे हैं, काफ़ी सारे पदों पर रहे हैं, सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुशील कुमार सिंघल, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक रहे हैं, वो भी हमारे साथ रहे हैं कई देशों में राजदूत के तौर पर। तो दोनों एम्बेसडर्स का स्वागत है, एम्बेसडर अनिल वाधवा और एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल का। एम्बेसडर वाधवा, अगर आपके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें तो कैसे आकलन करेंगे आप इन 5 देशों की यात्रा का, या बल्कि आपको अगर मैं क्यों देने की कोशिश करूं तो क्या इन यात्राओं को भारत की एक नई रणनीतिक कूटनीति के तौर पर देखेंगे आप, जहां पर ऊर्जा और उसके साथ ही साथ तकनीक और सुरक्षा जो है पूरी यात्रा के केंद्र में रहा है कहीं ना कहीं किसी तरह से? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया और आपने अपने रिपोर्ट में भी पहले बताया कि अभी हाल ही में जो 15 से 20 मई के बीच यूरोप और यूएई की 5 देशों की विस्तृत कूटनीतिक यात्रा प्रधानमंत्री ने करी है। इसके तहत उन्होंने यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की एक व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण यात्रा की है। और इस दौरे को भारत, यूरोप और भारत गल्फ रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से मैं समझता हूँ व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और उन्नत तकनीक जैसे एआई है, सेमीकंडक्टर है, ड्रोन आदि, इन सभी क्षेत्रों में।
और फिर उसके बाद जो व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिला है, क्योंकि हमने देखा कि यूरोपियन उद्योग गोलमेज एक गॉथेनबर्ग स्वीडन में हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूरोपियन कंपनी से भारत में निवेश करें और अभी निवेश करें, इसकी सीधी अपील करी है और अगले 5 साल में भारत के लिए नई प्रतिबद्धता जताने को कहा है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि इस बार भारत यूरोप औद्योगिक सहयोग के लिए इंडिया डेस्क एक बनाया गया है, वार्षिक सीईओ गोलमेज सम्मेलन और क्षेत्रवार कार्य समूह जैसे संगठित तत्वों का एक प्रस्ताव भी रखा गया है। और फिर यूएई में अगर हम देखें तो एक रणनीतिक ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर बातचीत करी है प्रधानमंत्री में, जिसमें रक्षा सहयोग और फिर साइबर स्पेस और आतंकवाद विरोधी जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। और तकनीक की दृष्टि से देखें तो नेदरलैंड्स के साथ व्यापार और फिर रक्षा, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और समुद्री सहयोग के क्षेत्रों में संरचित सहयोग को और मजबूत करने के लिए सहमति बनी है। तो बहुत ही ये एक बड़ा एजेंडा था और इसको सभी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको हैंडल किया है इस बार। जी, एडमिरल सिंघल, अगर आपसे हम इस बात को समझना चाहें कि क्या इस पूरी यात्रा में आर्थिक कूटनीति को आप इस पूरी यात्रा के केंद्र में देखते हैं, जहां पर विदेश नीति सीधे आर्थिक विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है? कैसे आकलन करेंगे इस यात्रा का? लेकिन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी एम्बेसडर वधवा ने बहुत ही विस्तार में बताया। जी, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात क्या इस बार देखने को मिल रही है, ये जो यात्रा हुई है 5 देशों की, कि पहले हमारी फोकस जो है रहती थी बड़े देशों में, यूरोप के, जैसे यूके हो गया, यूके तो खैर चलो ठीक है, यूके है या जो है अपना फ्रांस है, जर्मनी है। इस बार की जो यात्रा है, हमने मिडिल पावर जो है यूरोप, उनके साथ में संबंध प्रगाढ़ करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके पास आर्थिक शक्ति भी है, टेक्नोलॉजी भी है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इनोवेशन में बहुत अग्रणी है वो, और पॉलिटिकली स्टेबल भी। तो इस बार की फोकस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मैसेजिंग की बनस्पत आर्थिक, तकनीकी और ऊर्जा, ये 3 क्षेत्र मेरे ख्याल से फोकस में रहे इसमें बराबर। और कनेक्टिविटी, जैसे आईमैक के बारे में आप बात कर रहे हैं, कह रहे थे, इटली, जो नीदरलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जब आईमैक की हम बात करते हैं कि यूरोप, इटली जो है उसका वहां से प्रवेश होने का प्लान है हमारा, तो इटली इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नीदरलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो लॉजिस्टिकली हब है, वहाँ पोर्ट्स हैं, शिपिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसके और टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, ये सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, एआई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ये नॉर्डिक कंट्रीज के सबके बारे में बहुत अग्रणी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के चाहे ले लीजिए, आर्कटिक का रिसर्च ले लीजिए, शिपिंग, क्लाइमेट इनोवेशन हो, शिपिंग हो, फिर उसके बाद में डिफेंस का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो कि ये मिडिल पावर जो कंट्रीज हैं, इटली हुआ या नीदरलैंड हुआ या स्वीडन हुआ, ये इनकी जो इनोवेशन, इनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनके साथ हमारा पहले भी संबंध रहा है, लेकिन जितना अब प्रगाढ़ करने की कोशिश की गई है, कई एग्रीमेंट भी हमने साइन किए हैं, तो वो हमारे लिए एक रिलायबल पार्टनर के रूप में बन के आएंगे कि भारत अब जो है, जो जैसी विश्व परिस्थिति बन रही है, अब कुछ देशों पर रिलाई नहीं करने की कोशिश है। हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा देशों के साथ हमारे संबंध बने और पहले, क्योंकि हमने देख लिया है कि अगर आप कुछ देशों के साथ ही संबंध रखते हैं तो उसमें एक समस्या खड़ी हो जाती है, जो कि हमने गल्फ में भी देखा, अमेरिका के साथ भी देखा। तो अब हमारी कोशिश है, भारत की कोशिश ये है कि जितने ज्यादा देश हों जिसके साथ हमारी पार्टनरशिप हो, तो वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। और प्रधानमंत्री जी की यह यात्रा है, जो अग्रीमेंट साइन हुए हैं, वो मेरे ख्याल से उसी की दिशा में एक जो है वो कदम है, और जो आई थिंक आगामी समय में जो है बहुत फायदेमंद होंगे, क्योंकि हमने 3 देशों के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पे हमने लिया है रिलेशनशिप को। तो एक मोमेंटम बना लिया है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होगी, कंटिन्यूअसली जो है उसको फॉलो अप किया जाए। जी, निश्चित तौर पर।
हाँ, एक मोमेंटम बना लिया है, कंटिन्यूस इसके फॉलोअप की ज़रूरत है, वो फॉलोअप किया जाएगा और जाहिर तौर पर एक नई दिशा की तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, दर्शकों आप भी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान एम्बेसडर अनिल वाधवा और एम्बेसडर सुशील कुमार जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर वाधवा, जब हम बात करते हैं इस यात्रा की, यूएई से लेकर के नॉर्डिक देश और इटली तक, आपने देखा कि वो चाहे इन सभी के साथ भारत सप्लाई चेन, ग्रीन एनर्जी और इसके साथ ही साथ सेमीकंडक्टर पर विशेष जोर दिया गया है। क्या भारत दुनिया के लिए एक वैकल्पिक, विश्वसनीय वैकल्पिक पार्टनर के तौर पर उभर रहा है? कैसे आकलन करेंगे इसका? देखिए, ये सब जो एआई के ऊपर जो फोकस था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस था, उसके साथ साथ एफडीआई के ऊपर भी फोकस रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर मेन फोकस था, जिसको हम कह सकते हैं कि यही विकास के लिए राजनय था, डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। और उसके साथ साथ जो सीईओस के ऊपर एक फोकस इस विजिट में हमने देखा है, क्योंकि सिर्फ सरकारी स्तर पर सीमित न रहकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूरोपीय उद्योग नेताओं से सीधा संवाद शुरू किया है। और जो वार्षिक सीईओ गोलमेज है, और जैसे मैंने पहले बताया कि वर्किंग ग्रुप्स, इंडिया एक्शन ग्रुप, इस तरह की जो संस्थागत व्यवस्थाएं प्रस्तावित उन्होंने करी हैं, तो उससे ये दिखता है कि भारत यूरोप के साथ स्ट्रक्चर्ड औद्योगिकी भागीदारी चाहता है, स्ट्रक्चर्ड डायलॉग फॉर द फ्यूचर। और उसको अब थोड़ा आगे ले जाएं तो सुरक्षा और भू राजनीतिकरण दृष्टिकोण भी है, क्योंकि उसमें रक्षा उद्योग है, साइबर सुरक्षा है, सेमीकंडक्टर है, और अभी आपने जैसे बताया समुद्री मार्ग सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काफी चर्चा इस बार हुई है। तो इससे पता लगता है कि भारत यूरोप के साथ ऊर्जा सुरक्षा और टेक स्पेस सुरक्षा के लिए एक नया रणनीतिक एजेंडा उसमें भारत उनके साथ जोड़ रहा है। जी, निश्चित तौर पर। तो आपने जिस तरह से इसका आकलन किया और जिस तरह से आपने कहा ना एक शब्दावली में कि डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विशेष विषय पर बातचीत करने के लिए। तो
तो न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ छोड़े जाएंगे। नॉर्वे के पूर्व मंत्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व प्रमुख एरिक सोलहेम ने इस पूरे दौरे की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि मोदी का नॉर्वे दौरा बेहद सफल रहा है और भारतीय लोकतंत्र की ताकत को पूरी दुनिया को देखना चाहिए। एक नॉर्वेजियन पत्रकार की आलोचना पर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जवाब दिया और भारतीय लोकतंत्र की वास्तविकता को रैंकिंग से परे बताया। तो आप देखिए इस खबर को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नॉर्वे के पूर्व मंत्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व प्रमुख एरिक सोलहेम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नॉर्वे दौरा अत्यंत सफल रहा है। नॉर्वे की पत्रकार की टिप्पणी का भी जवाब देते हुए एरिक सोलहेम ने सोशल मीडिया के मंच के जरिए कहा, 2 हफ्ते पहले 5 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्य में मतदान दर 94% थी। वहीं नॉर्वे के पिछले स्थानीय चुनाव में ये 62% थी और कई यूरोपीय देशों में ये 50% से भी कम है। क्या भारी संख्या में मतदान ये संकेत नहीं है कि भारतीय नागरिक अपने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा करते हैं? उसी चुनाव में भाजपा ने असम और पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हासिल की, जबकि केरलम और तमिलनाडु में उसे हार का सामना करना पड़ा। क्या यह विविधता ये संकेत नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र जनता की इच्छाओं को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? एरिक सोलहेम ने कहा है कि नॉटो पत्रकार ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग का हवाला दिया, जिसमें भारत को विश्व में 157वां स्थान दिया गया था, जो कि तानाशाही और संकटग्रस्त देशों से पीछे है। उन्होंने कहा कि जब ये रैंकिंग सामान्य समझ के खिलाफ हो तो नेताओं से टिप्पणी करवाने की बजाय उन लोगों से सवाल करना चाहिए जिन्होंने ये रैंकिंग बनाई। सल्वाटोर बोबोन्स की किताब धर्मा डेमोक्रेसी इस रैंकिंग की गलत पद्धति को स्पष्ट रूप से दिखाती है। एरिक सोलहेम ने कहा कि एक और रैंकिंग ने दावा किया है कि भारत में पत्रकार होना बहुत खतरनाक है। वास्तविकता यह है कि अमेरिका में पत्रकार होना कहीं अधिक खतरनाक है और विश्व के अधिकांश देशों में यह खतरा और भी अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, कुछ घटनाएं जरूर होती हैं। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप की कुल जनसंख्या के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद भारत यूरोप या अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण है। ये खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में कई भाषाएं, धर्म और जातियां हैं और विकास की चुनौतियां भी बड़ी हैं। एरिक सोलहेम ने कहा कि भारत एकमात्र बड़ा पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है जिसने स्वतंत्र होकर लोकतंत्र अपनाया और इसे बनाए रखा। कभी कहा जाता है कि ब्रिटिशों ने भारत को लोकतंत्र सिखाया। अगर ऐसा होता तो म्यांमार, पाकिस्तान या खाड़ी के देश लोकतंत्र क्यों नहीं बने? वास्तविकता यह है कि भारतीय लोकतंत्र स्वदेशी है और असाधारण रूप से सफल है। एरिक सोलहेम पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके नेतृत्व और पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण के लिए जमकर तारीफ कर चुके हैं। नॉर्वे के एक अखबार में छपे लेख में सोलहेम ने पीएम मोदी की लोकप्रियता, आर्थिक सुधारों और हरित विकास पर उनके जोर का जिक्र करते हुए उन्हें एक ऐसा परिवर्तनकारी नेता बताया जो वैश्विक मंच पर भारत के उदय को गति दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी